So welcome students again, welcome to my channel, and this is the fourth lecture we are having today. So I hope you have already gone through our three lectures already. So now we will be starting with this topic, that is conductors and insulators of the chapter 2 of class 12 physics. So let's begin. So I hope you have already uh, have a basic idea of this conductors and insulators. So now let's have that idea from our memory. Now let's see what do I mean by conductor and insulator. Say we are taking a particular material, and say we are if it allows the current through it, if it allows the current passing through it, then we can say that this particular material is a conductor. It is a conductor. अगर current इसके through flow कर सकता है, then we can say that this is a conductor, right? Now what are the examples? You can say it is aluminium, it is nickel, etc., right? Similarly, if we are taking a particular material and it does not allow the current through it, then we can say that this is an insulator. इंसुलेटर कभी भी अपने थ्रू करंट फ्लो करने नहीं देता है, ठीक है? तो इंसुलेटर के एग्जांपल क्या हो सकता है? ग्लास, माइका, एक्सेट्रा, ठीक है? तो दिस आर दी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है? Now let's move on to the next topic, by which we can also have a clear picture of conductor and insulator, that is free and bound charge. Free and bound charge. Okay, so let's see what is it. So to know about free and bound charge, we have to have a basic idea of electronic configuration of an atom. So let's see if we are trying to make the electronic configuration of sodium, say. So these are the electrons: 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So there are 10 and one extra electron will be there. Say this is the extra electron. Now for the case of sodium, we are having 11 electrons. So in this picture we are having this. So this electron, which is just at the valence shell of sodium, this is at a very far distance from the nucleus, right? So it is loosely bound from the sodium atom or sodium nucleus. So that's why if we put some extra force, or if we give some kind of electric field over here, this electron may come out from this external shell. So then it becomes free. Now this electron will become free. So this will be called as free electron. This will be called as free electron. Now if this electron is removed, so the atom will be looking like will look like this, right? So it is what? It is just Na plus atom. This is just Na plus atom. Now this sodium plus charge, it cannot move. Okay, so these are the electrons which are bound to the nucleus, right? Which are bound to the nucleus. So this charge cannot move, and this will be known as bound charge. This will be known as bound charge. Is it clear?
So these are the basic idea of free and bound charges. Okay, I hope it is clear. So now how to explain the the conductors and insulators with the help of this free and bound charge concept. So for conductors, we can have for conductors we can have number of free electrons if we give some kind of electric field inside a conductor, right? But whenever we give electric field to a insulator, we give electric field to a particular insulator, there will be no free electron. So that's why insulator cannot carry current. इंसुलेटर करंट कैरी नहीं कर सकता इस वजह से, ठीक है। तो इसीलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, राइट। now we are in this chapter we are very much interested to find out we are very much interested to have the idea about this, that is the behavior of conductors in the electrostatic field, ठीक है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कंडक्टर कैसे बिहेव करता है, इस बिहेवियर को स्टडी करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई एग्ज़ाम में 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। यहाँ पे हमें 5 और 6 पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। 5 or 6 behaviors we'll have to study about the behavior of conductors in electrostatic field. So all these 5 behaviors are very important from exam perspective. So आप इसका अच्छे से notes बना लेना और याद रखने की कोशिश करना, because these concepts will help you to study further this chapter as well as throughout the syllabus. Okay, so let's start with the first point. That is net electric field electric field intensity in the interior of a conductor is 0. So these are the observation we have already seen in experiments. Okay, so the first behavior we have seen when we place a conductor in a, say this is the conductor, we are placing it in between two charge plates, one is positive, one is negative. So when we place a conductor in between two charge plates, these two charge plates will produce electric field E naught, as you can see. So there will be a certain behavior. So what is the behavior? The net electric field intensity in the interior of a conductor will be 0. How it is becoming 0? See, when a conductor is placed in an electric field, the charges drift towards the positive plate, leaving दी पॉजिटिव कोर बिहाइंड। ओके, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब प्रोड्यूस होता है तो एक बाउंड चार्ज भी उसके साथ प्रोड्यूस होता है। दैट बाउंड चार्ज इज द पॉजिटिव कोर, जो जिसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वो अपनी जगह पे ही रहता है उस कंडक्टर के अंदर, ठीक है। एट एन इक्विलिब्रियम द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन बिकम्स इक्वल टू द अप्लाइड फील्ड। सो द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, ठीक है। तो इसको थोड़ा और स्पेसिफिकली समझते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा हम ये भी समझ लेंगे व्हाट इज़ पोलराइजेशन, ठीक है। सो मान लो ये कंडक्टर है जिसको मैंने दो प्लेट्स के बीच रखा है, वन इज पॉजिटिव अनदर वन इज नेगेटिव, ठीक है। ऐसे दो प्लेट्स के बीच रखा है। सो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल क्रिएट अ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई नॉट से, ठीक है। अब ई नॉट जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये जो कंडक्टर है इसके अंदर जो एटम्स होंगे, एटम्स से क्या होगा, बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएगा और वो एक बाउंड चार्ज भी प्रोड्यूस करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आएंगे दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय
दिस पार्ट बाय दिस पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड होंगे, है ना. सो लेट्स ड्रॉ देम. So these are the electrons which will be attracted by the positive plate. Okay. Similarly यहाँ पे क्या होगा, जो बाउंड चार्ज थे जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं वो क्या हो जाएंगे, दैट दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव प्लेट. ठीक है, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव प्लेट. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक साइड पे पॉजिटिव आ रहा है, एक साइड पे नेगेटिव आ रहा है, तो इनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन. आफ्टर एप्लीकेशन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये सब सरफेस के ऊपर है. ठीक है, ये सब सरफेस के ऊपर है, अंदर कुछ नहीं हो रहा है. अंदर से तो चार्ज मूव कर रहा है सरफेस की तरफ. ठीक है, ये जो चार्जेस हैं दे आर ऑन दी सरफेस. ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद कंडक्टर के सरफेस के ऊपर दो डायरेक्शन में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आ जाने का जो प्रोसेस है इसी को हम पोलराइजेशन कहते हैं. अब पोलराइजेशन की वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. से दिस इज ई सफिक्स पी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, तो इसी वजह से ये इस डायरेक्शन में है. ठीक है, तो ये कब तक चलेगा, ये पोलराइजेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोडक्शन कब तक चलेगा, अनटिल और अनलेस ई नॉट इज इक्वल्स टू ई पी, तब तक ये पोलराइजेशन चलेगा. अब ये जब चलेगा देन व्हाट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जब इक्वल हो जाएंगे तब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नॉट माइनस ई पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सो दैट्स वाई इनसाइड द कंडक्टर, मैं अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूँ तो इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट विल बी ऑलवेज ज़ीरो. सो इनसाइड दिस the electric field, the net electric field will be always zero. So this is the first point, first behavior of a conductor which we have to remember. So net electric field intensity in the interior of a conductor is zero. So the next point, let's move on to the next point. Electric field just outside the charged conductor is perpendicular to the surface of the conductor. ठीक है, तो क्या है, मान लो, you have to remember this point. Let me understand it first. Let us understand. So electric field just outside the charged conductor is perpendicular to the surface of the conductor. इसका मतलब क्या है, मान लो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया है. ठीक है, अब कंडक्टर से आर्बिट्ररी एक कंडक्टर लेते हैं, इट विल बी बेटर. ठीक है, आर्बिट्ररी शेप का एक कंडक्टर लेते हैं. आर्बिट्ररी शेप का एक कंडक्टर लिया और मैंने क्या, हमारा स्टेटमेंट क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. स्टेटमेंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सरफेस है, सरफेस से जस्ट बाहर जो होगा उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, लेकिन टू प्रूव दिस स्टेटमेंट व्हाट आई एम सेइंग, आई विल जस्ट कंसिडर दैट ये जो कंडक्टर है इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट परपेंडिकुलर, ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए था, मैं अगर ये पॉइंट चूज़ करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है. टू प्रूव इट ये ऐसा है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक पर्टिकुलर एंगल में होगा, से दिस इज़ थीटा. ठीक है, तो उसका दो कंपोनेंट होना चाहिए, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि इस तरफ ही होगा और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑन द सरफेस जो कि इस तरफ होगा. ठीक है, अब टेंजेंशियल कंपोनेंट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा ये अगर सर्वाइव करता है, इफ़ इट इज़ हैविंग अ पर्टिकुलर वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है. इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में है तो जो कंडक्टर का सरफेस है, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड रहने की वजह से चार्ज का एक फ्लो होना चाहिए. चार्ज शुड फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर, बट इन रियल लाइफ
in real life we don't see any kind of surface current. सरफेस करंट मतलब जो करंट सरफेस के थ्रू फ्लो करता है, ऐसा कोई सरफेस करंट हम रियल लाइफ में नहीं देखते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा जो कंसिडरेशन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर एंगल पे है कंडक्टर के जस्ट बाहर, वो रॉन्ग कंसिडरेशन था। तो इसका मतलब क्या है, जो पहले का स्टेटमेंट है दैट इज़ करेक्ट, दैट इज़ ए पर्टिकुलर पॉइंट और जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to the surface, just outside the surface. Okay, so I hope you understood this point. So notes बना लेना, तो पॉज करके यहाँ से आप लोग बना सकते हो, ठीक है। So next point is net charge in the interior of a conductor is zero. ये भी बहुत ही सिंपल प्रूफ है। तो स्टेटमेंट हमें पहले समझना है, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज ज़ीरो। इसका मतलब समझते हैं पहले। तो ये अगर एक कंडक्टर है, इसके अंदर मतलब इसके अंदर मान लो ये सब जो पॉइंट्स हैं, ये कंडक्टर के अंदर वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा, इस पॉइंट पे जो नेट चार्ज होगा क्यू नेट और क्यू एनक्लोज्ड, दैट विल बी ज़ीरो इनसाइड द कंडक्टर। ये हमें प्रूव करना है बिकॉज इट इज़ द next behavior which we observed. So the charges net charge in the interior of a conductor is zero, that we have to prove. ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे हम इसको? So हम क्या करेंगे इसके लिए? हम इसके लिए सोचेंगे कि एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है, जो कि इस तरह है, कुछ इस तरह। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अब देख लो, अच्छे से देखना बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे जो सरफेस को जस्ट टच करेगा और बाकी हिस्सा जो है वो कंडक्टर के अंदर ही रहेगा। अब ये अगर गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस अगर कंसिडर करते हैं तो गॉसियन सरफेस के थ्रू कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन हम अगर गॉसेस थ्योरम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ई डॉट डी एस is equals to q enclosed by epsilon naught. So this is the Gauss's theorem, we already learned it. अब in the first chapter, अब क्या है, अब हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो होता है। फर्स्ट पॉइंट हमने वही सीखा था, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। अब यहाँ पे हमें ये पुट करना है, तो इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो देन दिस इंटीग्रेशन विल गिव अस ज़ीरो। So q enclosed divided by epsilon naught, it is 0, so q enclosed is equals to 0. This is very simple proof of this, ठीक है। इसका मतलब इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके थ्रू कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इस वजह से इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली इसके अंदर ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले जो पॉइंट्स होंगे, ये वाले पॉइंट्स पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो हम अगर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दे देते हैं कंडक्टर को, तो वो कहाँ जाएगा, देख लो आप, ये एक्स्ट्रा चार्ज है हम कंडक्टर को दे रहे हैं, तो कंडक्टर के सरफेस में चला आएगा, ठीक है। ट्रांजिशन अच्छे से देख लो, चार्ज है एक्स्ट्रा, कंडक्टर को हम दे रहे हैं, तो वो सरफेस में आ जाएगा, वो कभी भी कंडक्टर के अंदर स्टोर नहीं होगा, ठीक है। So the next point, point number 5, electric potential is constant for the entire conductor. That proof is also very simple. Electric potential जो होगा कंडक्टर के अंदर, that is constant. इसका मतलब क्या है, मतलब फिर से समझते हैं पहले। स्टेटमेंट का मतलब है कि मान लो ये हमारा कंडक्टर है, इसके अंदर मतलब ये पर्टिकुलर रीजन में, ये जो पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या है, v शुड बी कांस्टेंट। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो, सो वी नो दैट इनसाइड दिस कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो। वो फिर से सेम पॉइंट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या जानते हैं, और
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr, ये हमने देखा था. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dV/dr, देन फ्रॉम दिस dV/dr इज इक्वल्स टू 0. अब dV/dr अगर 0 है देन v इज कांस्टेंट. v क्या है? कांस्टेंट है, बिकॉज फर्स्ट डेरिवेटिव अगर कभी भी 0 होता है देन दैट फंक्शन बिकम्स कांस्टेंट. ठीक है. और इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, यहाँ पे जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज ऑल्सो 0. तो इसका मतलब सरफेस के ऊपर भी v इज ऑल्सो कांस्टेंट ऑन दी सरफेस. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो भी 0 है, बिकॉज दिस इज 0. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू नो दिस. ओके, सो दैट्स इट. एंड फाइनली हमें और एक प्रूफ देखना है यहाँ से. ठीक है. और एक प्रूफ जो देखना है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of a charged conductor is proportional to the surface charge डेंसिटी. ठीक है, ये आप नोट कर लो कॉपी में. ठीक है, हम इसको अभी प्रूव करने वाले हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी. इसका मतलब पहले समझते हैं. इसका मतलब है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें पता है, पहले इसको रिमेंबर करते हैं. व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी? ये है सिग्मा. सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था. क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी. अब मैंने क्या कहा था अभी अभी कि अगर एक कंडक्टर हम लेते हैं तो जो चार्जेस हैं, एक्सेस चार्जेस जो हैं, वो सरफेस के ऊपर रह जाएगा. ठीक है, क्लियर. अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ना. हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर ऑन दिस सरफेस. ठीक है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर हो गया तो डेफिनेटली ये जो चार्जेस हैं उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज डेंसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ना कोई रिलेशन तो होगा, राइट. सो यहाँ पे कहा जा रहा है स्टेटमेंट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये जो सिग्मा है ये प्रोपोर्शनल है. ठीक है, दैट इज द स्टेटमेंट वी हैव टू प्रूव. आया समझ में? नाउ रिमेंबर दिस रिलेशन, विल बी यूजिंग इट वेरी सून. ठीक है, सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज बाई एरिया. अब देखते हैं इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है. ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे इसको? देखो आप लोग, इसके लिए हमें गॉस थ्योरम का हेल्प फिर से लेना है. गॉसेस थ्योरम क्या है? देखो कैसे हम लेते हैं. तो हमें क्या प्रूव करना है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? ये सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. तो हम गॉसेस सरफेस को ऐसे ही चूज़ करेंगे इस डायरेक्शन में. और यहाँ पे एक खासियत है गॉस सरफेस चूज़ करने का कि गॉस सरफेस का हाफ पोर्शन कंडक्टर के बाहर होगा और हाफ इसके अंदर. सो ये वाला पोर्शन अंदर है और ये वाला पोर्शन बाहर है. ठीक है. नाउ ds कौन सा है यहाँ पे? देखो आप लोग, तो यहाँ पे जो ये पोर्शन है सरफेस के ऊपर, जस्ट कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज डेल्टा एस. ठीक है, ये सरफेस है हमारा. सो एरिया क्या लिया गॉसियन सरफेस का? एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इज डेल्टा एस. ठीक है.
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है और सरफेस चार्ज सरफेस एरिया अगर डेल्टा एस है, देन व्हाट इज़ फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फाई क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा ई इंटू डेल्टा एस। ये फ्लक्स में हमने सीखा था, डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स में, फ्लक्स इज just the product of the electric field and the area through which the electric field is passing, right? So this is the flux which is passing through this area, this particular area ds, ठीक है। now यहाँ पे हम और एक चीज़ निकाल सकते हैं, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द पिल बॉक्स। ये जो पिल बॉक्स है इसे हम पिल बॉक्स कहेंगे, ठीक है। तो इसको अगर पिल बॉक्स कहेंगे, देन व्हाट इज़ द चार्ज एनक्लोज्ड? चार्ज एनक्लोज शुड बी, यहाँ पे चार्ज कहाँ पे है? चार्ज सिर्फ ये वाले सरफेस पे है। ये जो सरफेस आप लोग देख रहे हो, ये वाला सरफेस, कंडक्टर के सरफेस जो है इसके अंदर, दैट इज़ डेल्टा एस। इस सरफेस के ऊपर ही सिर्फ चार्ज है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? क्यू एनक्लोज्ड इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू द सरफेस एरिया, ठीक है। ये कैसे आया? देखो, सिग्मा मतलब क्या? सिग्मा मतलब चार्ज बाई एरिया, और डेल्टा एस भी क्या है? ये भी एरिया है। तो इन दोनों को अगर काट दे तो क्या आ जाता है? चार्ज। सो विच वी आर गेटिंग ओवर हियर। सो दैट्स वाई क्यू एनक्लोज्ड कैन बी रिटन एज सिग्मा इनटू डेल्टा एस, ठीक है। सो दिस इज इट। नाउ हमारा कुछ लास्ट स्टेप ही बचा हुआ है, देखते रहो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे Q भी मिल गया हमें, फाई भी मिल गया, ठीक है। तो गॉसेस थ्योरम क्या बताता है? गॉसेस थ्योरम बताता है फाई इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट अगर यूज़ करेंगे तो वैल्यू पुट करना पड़ेगा। इट इज़ ई इंटू डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज मतलब सिग्मा इंटू डेल्टा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बोथ साइड से हम क्या कर सकते हैं? दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। नाउ वी विल बी हैविंग ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, सो दिस इज द रिलेशन, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट ई इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, एंड दिस इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, यू हैव टू रिमेंबर। ये हमें बाद में भी यूज़ करना है। कोई भी एक कंडक्टिंग सरफेस है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर वो वैक्यूम में है तो, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, यू हैव टू रिमेंबर। तो अगर इसको वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो कैसे करेंगे? ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप क्या है? एन कैप इज दी दिस डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा दैट इज एन कैप। क्लियर? So I hope you understood this point. Now another very important point is there, let me write it for you, that is electric field is zero in the cavity of a hollow चार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ अ हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है। ये प्रूव करना है। इसका मतलब पहले फिर से समझ लेते हैं। मान लो ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर एक कैविटी है, मतलब जहाँ पे खाली है, हॉलो पार्ट है। मान लो एक फुटबॉल का ये पार्ट है, और बीच में ब्लडर के बीच में जो पार्ट होता है दैट इज़ हॉलो, जहाँ पे एयर होता है, हम एयर फिल करते हैं उसी पार्ट में। सो से अ हॉलो पार्ट इज देयर इनसाइड लाइक दिस, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे? अब हम प्रूफ करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो इन द कैविटी ऑफ अ हॉलो चार्ज कंडक्टर। मतलब ये जो हॉलो पार्ट होगा, ठीक है, ये जो हॉलो पार्ट्स होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इट विल बी ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी ज़ीरो।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है आप देख लो, ठीक है। आया समझ में स्टेटमेंट? आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ let's see how to prove it. Now what is the scenario first? Let me tell you. Sorry, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। हम पहले ये सोच लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटसाइड द कंडक्टर, ठीक है। लेकिन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो। ये वाला कंडक्टर वाला पार्ट है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो रेड डॉटेड पॉइंट, ठीक है। ये रेड वाला जो डॉटेड पॉइंट है ये पूरा कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर वाला पार्ट, ठीक है। ये पूरा कंडक्टर का अंदर वाला पार्ट है जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ज़ीरो। अब हमें ये यूज़ करके प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट कैविटी विल बी ज़ीरो। तो इसके लिए हमें हेल्प लेना है फिर से किसका, गॉस थ्योरम का। देखो यहाँ पे जो गॉस सरफेस हम चूज़ करेंगे वो जस्ट कैविटी का एक सरफेस से जस्ट पास रहेगा। उसका जो सरफेस है वो गॉस का जो गॉसियन सरफेस हम चूज़ करेंगे उस सरफेस के साथ एक सरफेस लेगा। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस अगर ऐसा चूज़ करते हैं हम लोग, तो इस गॉसियन सरफेस के लिए E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे क्यू एनक्लोज्ड क्या है, ये जो चार्ज है ये इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, जितना चार्ज है वो बता रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो ओवर हियर, सो दिस पार्ट इज़ ज़ीरो, सो क्यू एनक्लोज्ड is epsilon naught, this is 0, so q enclosed is 0 which you have already proved but still I proved it for you ताकि आप लोग को समझ में आए। तो ये गॉसियन सरफेस का एक सरफेस जो है वो कैविटी के सरफेस के साथ मैच कर रहा है ऐसे, ठीक है। कैविटी के सरफेस के साथ ये ऐसे मैच कर रहा है। मान लो ये वाला कैविटी का सरफेस है, ठीक है, इसके साथ मैच कर रहा है। से दिस इज द सरफेस ऑफ द कैविटी, तो इसके साथ ये ऐसे मैच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट पे चार्ज जो है वो ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये अगर कैविटी हुआ, मान लो ये अगर कैविटी हुआ, तो इसके ऊपर वाले जो सरफेस है, ठीक है, ये वाला जो सरफेस है यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो चार्जेस हैं वो ज़ीरो हो रहे हैं। यहाँ पे अगर मान लो मैं चार्ज कंसीडर भी करता हूँ, वी कैन नॉट कंसीडर इट बिकॉज दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, क्लियर। तो अल्टीमेटली मैंने ये प्रूव कर लिया कि कैविटी के जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। नाउ कैविटी के अंदर जाते हैं। कैविटी के अंदर क्या है, कैविटी के अंदर मैंने पहले ही कह दिया है कि Q इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ पे कोई चार्ज पहले से नहीं है। अगर चार्ज नहीं है देन E डॉट डी एस, सेम गॉसियन थ्योरम में इट शुड बी ज़ीरो, सो E इज इक्वल्स टू ज़ीरो बिकॉज डी एस कैन नॉट बी ज़ीरो, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस इज ज़ीरो, hence it is proved electric field inside the Gaussian surface is 0, clear। so this is how you have to prove। और इस चीज़ को यूज़ करके, इस कंसेप्ट को ही यूज़ करके एक पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ते हैं, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं जल्दी से। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक which we'll be discussing in this video। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, राइट इट डाउन, द फेनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन को हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड कर देते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर रीजन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है
जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रेजेंस है, दैट इज़ हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जो कि हम एक कंडक्टर के अंदर ही सिर्फ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हॉलो कंडक्टर अगर लेते हैं, उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर थंडरस्टॉर्म हो रहा है, ठीक है, थंडरस्टॉर्म अगर हो रहा है, थंडरस्टॉर्म के टाइम बिजली का रख रहा है और आप एक कार के अंदर हो, ड्राइंग मेरा बहुत ही ख़राब है मुझे पता है, आप एक कार के अंदर हो। ठीक है, तो अंदर अगर रहते हो देन यू आर सेफ, बिकॉज कार किससे बना हुआ होता है, कार मेटल से बना होता है। ठीक है ना, अब मेटल के अंदर मेटल मीन्स कंडक्टर के अंदर ये जो स्टॉर्म्स है इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो दैट्स वाई नॉर्मली कहा जाता है कि अगर आपके आसपास कोई कार है, देन सिट इनसाइड द कार एट द टाइम ऑफ थंडरस्टॉर्म। ठीक है, सो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इस चीज़ का, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर थंडरस्टॉर्म का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, तो उसका इफेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। सो दैट्स वाई इट इज़ सेफ। Okay, so I hope you enjoyed this video, and if you have still any doubt, you can tell me in the comments. You can also mail me in the mail ID given in the about section. Okay, till then, stay safe. Bye bye.